السلام علیکم۔ میں دیکھ رہا ہوں عرص اعلیٰ حضرت میں جو رنگ تھا تھوڑا سا دھیما پڑے ہوئے ہیں، چہرے وہی بتا رہے ہیں، سب وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ستم زدوں کو ستمگر سلام کرتا ہے، تو آشیسوں کو پتھر سلام کرتا ہے۔ یزیدیوں کا قبضہ ہے فرات پر، لیکن حسینیوں کو سمندر سلام کرتا ہے۔ محبت سے بات دیجیے السلام علیکم۔ جمعی کے ساتھ بیٹھے عرص اعلیٰ حضرت میں سرکار کی میلاد کی دو واقعہ آج مکمل میلاد شریف آپ سماعت کریں گے، مکمل سرکار کی ولادت سماعت کریں گے۔ اور الحمدللہ مبارک حمدنات چینل والے اپنے ذریعہ، اپنے چینل کے ذریعہ دین کی خدمت کر میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد اشرف انبیائہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جھوم کر پورا مجمع پوری طاقت کے ساتھ درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ ضمیر الدین زمزم صاحب جہاں رہتے ہیں بہت بڑے بڑے اشعار سنایا کرتے ہیں۔ ہر ہندوستان کا خوبصورت لب الحجہ میں پڑھنے والا شاعر حضرت جاوید وارثی بھی تشریف فرما ہے، جنہیں مداح اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اتنی اشعار آپ سنے ہیں۔ اے لڑکا ہم کو دیکھو، ہم سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو نبی کی نعت پڑھتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ سنی علماء کو دیکھے، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، تمام علماء کو دیکھے، دور سے معلوم ہو جائے گا کوئی جنتی عالم بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے مولوی صاحب کو دیکھیے گا، معلوم نہیں چلے گا کلو بیا کہاں بیٹھا ہے، امام صاحب کہاں بیٹھا ہے۔ یہ سنیوں کی علامت ہے، دور سے دیکھ کر معلوم چل جاتا ہے سنیوں کا عالم آیا ہوا ہے۔ تمام اشعار آپ سنیں، نبی کی نعت سنیں، لیکن انوار اشرف کہتا ہے اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے، لے کر سمندروں کی سیاہی بھی آئیے، سارے درختوں کا قلم پھر بنائیے، مدحت رسول کی حور و ملک سے دکھائیے، کاغذ قلم سیاہی کا جوہر دکھائے گا، پھر بھی نبی کی نعت کوئی لکھ نہ پائے، پھر بھی نبی کی نعت کوئی لکھ نہ پائے۔ دیکھیے میرے بڑے بھائی آ چکے ہیں، انوار اشرف کے بعد اظہار اشرف آئیں گے۔ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں دونوں بھائی ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مجاز بنائیے، ان سے اعلیٰ حضرت والی تقریر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق نبی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، اور لاکھ لگا لو فتووں کی ان چیالوں کی بستی میں 17 گاچھی کا بچہ بچہ اعلیٰ حضرت بولے گا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور نعرہ لگاتے چلے جائیں، عشق بڑھاتے جائیں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دل جمعی کے ساتھ سماعت کریں کہ حسن کو ہم عشق کی جاگیر کہا کرتے ہیں، خاک طیبہ کو ہم اکسیر کہا کرتے ہیں، تمام ولیوں میں افضل ہے میرے غوث اعظم، اس لیے ہم انہیں بڑے پیر کہا کرتے ہیں۔ 4 مصرے بڑے ابا سنیے گا، آپ کی طرف سے 4 مصرے پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ چہرہ چمک رہا ہے، سرکار مجاہد ملت کے دیوانوں کا چہرہ یوں ہی چمکا کرتا ہے۔ جو بات دوا سے ہو نہ سکے وہ بات دعا سے ہوتی ہے، جو بات دوا سے ہو نہ سکے وہ بات دعا سے ہوتی ہے، جب پیر کامل ملتے ہیں تب بات خدا سے ہوتی ہے۔
तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, जिसे मुजाहिद बनाते उसे बिगड़ने नहीं देते। पूरा मजमा एक मरतबा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब हम मिजाज बनाते हैं 4 मिसरे में पूरा मजमा जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा। 4 मिसरे पेश कर रहे हैं कि 4 मिसरे पूरा मजमा एक मरतबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तसव्वुर में कभी तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेती है, सुपरवर जाग जाते हैं, तुम अपनी तरह कहते हो तुम्हें गैरत नहीं आती। नबी के पाँव छूने से पत्थर जाग जाते हैं, नबी के पाँव छूने से पत्थर जाग जाते हैं। हजरात आपने अपने इलाके को 12 रबी अव्वल को सजाया है। कुछ लोग कहते हैं 12 रबी अव्वल का जुलूस कहाँ निकला है, कहाँ किताब में है, कौन सी हदीस में है, कुरान में कहाँ लिखा है। तुम कह देना कुरान हदीस तो अलग बात है, तुम कह देना जुलूस मोहम्मदी निकालना सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है, सुन्नियों के मुकद्दर में। इतराज और किया जाता है, लोग कहते हैं 12 रबी अव्वल को मोहम्मद रसूलुल्लाह वफात पाए, 12 रबी अव्वल को विलादत हुई, दोनों तारीखें एक है। तुम जश्न मनाते हो, विलादत के जश्न मनाते हो, तुम जश्न मनाते हो, उन्हें हदीस और कुरान नहीं। कह देना सुनो तुम्हारा नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा, मेरा नबी आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। हमारा मुकद्दर है, हम जुलूस मनाते हैं, हम अपने इलाके को सजाते हैं, हम अपने मोहल्ले को सजाते हैं। मुझको देखिए, मुझको देखिए, मुझको देखिए। एक बड़ा जुमला दे रहा हूँ, संभाल के रखिएगा। हम जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, हम अपने गलियों को सजाते हैं। आज नौजवानों ने, जान खान के नौजवानों ने, सत्ताची के नौजवानों ने अपने गली को सजा दिया है किसी मोहब्बत में, मदीने वाले आका की मोहब्बत में। हम पूछना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं हम अपनी बिल्डिंग में लाइट नहीं लगाएंगे, हम चलाना नहीं करेंगे, तू गालियां ना कर। और हम तुम्हें बता रहे हैं 1500 साल पीछे चलते हैं। मेरे आका जमीन ने आसमान से पूछा था, ए आसमान बता मेरे सीने पे जितने दरख्त मुरझाए थे सब हरे भरे हो गए हैं। जमीन ने आसमान से पूछा था, ए आसमान बता मेरे सीने पे जितने दरख्त मुरझाए थे सब हरे भरे हो गए हैं। मेरे सीने को साफ और शफाफ कर दिया गया है, मेरे ऊपर एक खुशबूदार हवा चल रही है। ए आसमान पता आज क्या होने वाला है। तो आसमान कहता है ये जमीन अपनी बात कर रही है, मेरी लाइट को अल्लाह बढ़ा दिया है, मेरे नीलेपन में अल्लाह इजाफा कर दिया है, मेरी रोशनी को अल्लाह बढ़ा दिया है। आसमान ने जमीन से कहा, ए जमीन आज लग रहा है कुछ होने वाला है, लेकिन मालूम नहीं क्या होने वाला है। पहले आसमान ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने तीसरे से पूछा, तीसरे ने चौथे से पूछा, सबने सबसे पूछा। आसमान का एक जवाब था, आज कुछ होने वाला है लेकिन मालूम नहीं क्या होने वाला है। सबने यही जवाब दिया, अल्लाह मेरे नीलेपन को बढ़ा दिया है, अल्लाह मेरी रोशनी में इजाफा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है लेकिन मालूम नहीं क्या होने वाला है। अब सब आसमां मिल करके सूरज से पूछते हैं, खुर्शीद से पूछते हैं, ए सूरज पता आज क्या होने वाला है। तो सूरज कहता है, सुनो जब मैं निकलने की तैयारी कर रहा था अल्लाह का हुक्म होता है, ए सूरज आज जमीन को गरमाना नहीं, आज अपनी हरारत को अपने दामन में सिमट के रखना, आज जमीन को गर्म होने मत देना। ए सूरज ले नूरी चादर ओढ़ के निकलना। सूरज कहता है आज लग रहा है कुछ होने वाला है लेकिन मालूम नहीं क्या होने वाला है। सूरज ने चांद से पूछा, ए चांद पता आज क्या होने वाला है। चांद कहता है अल्लाह मेरी चांदनी को बढ़ा दिया है, अल्लाह मेरी लाइट को बढ़ा दिया है, अल्लाह मेरी रोशनी को बढ़ा दिया है। चांद ने भी कहा ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है लेकिन मालूम नहीं क्या होने वाला है। अब कमर ने, खुर्शीद ने कमर से पूछा, कमर ने सुरैया से पूछा, सुरैया ने मिर्रीख से पूछा, मिर्रीख ने अतारुस से पूछा, अतारुस ने ज़ोहरा से पूछा, सब सितारों ने सबसे पूछा, सबका एक जवाब आज लग रहा है अल्लाह मेरी लाइट को बढ़ा दिया है, अल्लाह मेरी रोशनी को बढ़ा दिया है। आज लग रहा है कुछ होने वाला है लेकिन मालूम नहीं क्या होने वाला है। अब सब सितारे मिलकर हज़रत जिब्राइल से कहते हैं, ए जिब्राइल जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है, जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया गया है। फरिश्ते भाग दौड़ में लगे हैं, खुशी के साथ गाने बजाए जा रहे हैं। ए जिब्राइल आप एक हरा झंडा लिए हैं, 70,000 फरिश्ते पीछे खड़े हैं। ए जिब्राइल आज क्या होने वाला है। तो जिब्राइल कहते हैं मालूम नहीं, आज 12 रबी अव्वल है, दुनिया में खुदा का महबूब पैदा होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे
का जिक्र होगा। आज मिलादुल नबी में सरकार की पैदाइश मुबारक का जिक्र सुनते चले जाए और मचलते चले जाए, अपने नबी का जिक्र सुने और झूमते चले जाए। ये तो सुन्नियों की अलामत है। हमारे जलसे में मौलाना भी बोलते हैं, मजमा भी बोलता है, कहते सुभान अल्लाह। उनका भी जलसा होता है, मालूम नहीं चलता है मौली साहब कब खत्म करेगा। मजमा बैठे बैठे सोने लगता है, मौली साहब बोलते रहते हैं, लेकिन हमारा जलसा दूर से देख करके लोग कह देंगे ये बरेली सुन्नियों जन्नतियों का जलसा है। सतरागाछी में मौलाना सनोवर साहब हो, मौलाना नौशाद साहब किबला हो और इमाम साहब हो, शबी मनोवर साहब किबला हो, इन लोगों ने इस इलाके में इतनी मेहनत की है कि जिस जलसे में मैं आता हूँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर सुन्नी नहीं बल्कि टन टन सुन्नी रहा करता है। आला हजरत के सच्चे दीवाने रहते हैं, आला हजरत के मस्ताने रहते हैं, आला हजरत के हम अपने रुख पर आ रहे हैं। आला हजरत के पीरो मुर्शिद नाम है आले रसूल महरारवी। आले रसूल महरारवी से एक पंडित जी ने कहा, मौली साहब आप लोग कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तमाम लोगों के सामने मजाक उड़ाना चाहा, मौली साहब आप लोग तो कहते हैं दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। एक चीज निकाला कुछ गोल, निकालने के बाद कहता है खाने का सामान था। मौलाना साहब मौलवी साहब बताइए इस पर किसका नाम लिखा है? तो आले रसूल महरारवी आंख बंद किए, आंख खोलते हैं, इरशाद फरमाते हैं तू जिस गांव में रहता है उस गांव के बगल में जो शहर है उस शहर में 2 राजहंस चल रहे हैं, उनका नाम लिखा है। उसने कहा मौलाना साहब आपकी शरीयत गलत हो गई, आपका कहा गलत हो गया, मौलाना लोग का कहना गलत हो गया। खाने दाने दाने पे लिखा हुआ खाने वाले का नाम, आपने कहा राजहंस का लिखा हुआ है। उसने लिया, खा लिया, हलक पे नीचे गया, उसने कहा देखिए मेरा नाम, आपकी बात गलत हो गई। जैसे ही पेट के अंदर गया, पेट में दर्द पैदा हो गया, मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा इलाज नहीं है, शहर में ले जाओ। गाड़ी आई, शहर में लेके चले गए। जैसे ही गाड़ी से उतरता है एक काय होती है, उल्टी होती है, जो खाया था निकल गया। 2 राजहंस चल रहे थे, आए और खाने को खा लेते हैं। अब पेट का दर्द सही हो गया, आया गाँव गिर गया, कलमा पढ़ा और कहता है लोगों ने कहा करी जल्दी। उसने कहा जब मारे हिला के पीर के निगाहों का ये आलम है तो मदीने वाले के निगाह का आलम। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? जोर से पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, सरकार की आदत, सरकार की आकल, मरहबा। बैठ जाए। कोई अगर पूछेगा सतरागाछी के नौजवानों से, ये छोटे छोटे मेरे भाई जो बैठे हैं इनसे कोई वहाँ भी पूछेगा इतना नारा लगाते हो, इतना नारा लगाते हो, नारा लगाते लगाते मर जाओगे, तो सतरागाछी का मुसलमान कहेगा, सुन्नी मुसलमान कहेगा ये दिल इसके नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इसके नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। अब एक रुख पर चलते चले जाए। 12 रबी अव्वल को मेरे आका पैदा हुए, मक्का शरीफ में मेरे आका की विलादत हुई। नबी की माँ का नाम आमिना खातून, मेरे नबी के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, मेरे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। मेरे नबी जब पैदा हुए, सरकार जब पैदा हुए, उनकी माँ कहती है मैं अपने घर के तमाम चिराग को तोड़ के फेंक दी। मेरे बेटे मोहम्मद के चेहरे से इतनी रोशनी फूट रही थी, पूरा घर जगमगा रहा था। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बरपा है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है बाला नूर का। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नबी आए हैं, मुस्तफा आए हैं, सरकार की आमद हुई है, मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई है। काबा में ले गए उनके दादा, देखते क्या है काबा मेरे नबी को सजदा कर रहा है। आला हजरत फरमाते हैं जिसके सजदे को मिहराबे काबा झुकी उस ज़मीन सआदत पे लाखों सलाम, और मेरे साथ कहिए मुस्तफा जाने रहमत।
माशाअल्लाह। अरब का दस्तूर था चचा, अरब में जब बच्चे पैदा होते ना अमीरों के घर में, रईसों के घर में, तो माँ बाप परवरिश नहीं करते, गाँव देहात से औरतें आती, बच्चे को लेके जाती, 4 साल 5 साल 6 साल तक रखी। जब बच्चा बड़ा हो जाता फिर उसके वालिदैन के हवाले कर देती। माँ बाप उसको इतनी दौलत देते, इतना रुपया पैसा देते कि वो औरत जिंदगी आराम से गुजार देती। 11 रबीउल अव्वल की रात में 12वीं की रात है, मक्का शरीफ से 7 घाटियों के पार करके कई सौ कोस दूरी पे एक गरीबों का गांव था जहां दाया लोग रहती थी। उस इलाके में आसमान से आवाज आई, ए बड़ी साथ की औरतों दौड़ो, मक्का में बच्चों की विलादत हुई है। याद रखेंगे आप, जिस दिन मेरा मुस्तफा दुनिया में आया, जिस दिन मेरे नबी पैदा हुए, पूरी दुनिया में जिसके भी घर में लड़का पैदा हुआ, लड़की नहीं अल्लाह सबको लड़का अता फरमा। सुनते चले जाए और चलते चले जाए। मिलादुन नबी के जश्न में आप बैठे हैं, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सदर साहब आ गए हैं, ऐसा महसूस ना हो कि आप ठंडे पड़े हुए हैं। माशाअल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो ना सुभान अल्लाह। मिजाज बन नहीं है, बना दीजिए, इंशाअल्लाह तकरीर कर दूंगा। मोहब्बत से पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। सुने सुने, 12 रबीउल अव्वल की रात को बनी सात गांव में आवाज आई आसमान से, ए बनी सात की औरतों जाओ, मक्के में बच्चों की पैदाइश हुई है। सुबह के वक्त तमाम औरतें निकली और चली गई, चलने लगी। तमाम औरतें सवारी पे सवार हो गई। जब औरतें निकल रही थी, उसी गांव में एक औरत रहती थी जो सबसे गरीब थी, बहुत गरीब थी। उसका नाम दाई हलीमा था। वो दाई हलीमा नहीं जा रही थी, औरतें गई, दरवाजे पे दाई हलीमा बैठी है। दाई हलीमा ने कहा, औरतों ने कहा, ए हलीमा, ए हलीमा, तुमने आसमान से आवाज नहीं सुना क्या? तुम्हारे कानों में आवाज नहीं आई? ए हलीमा मक्का नहीं जाएगी? हलीमा ने कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे घर में एक ऊँटनी है, कमजोर है, लागत है, दुबली पतली है, चंद कदम चलती है बैठ जाती है, चंद कदम चलती है बैठ जाती है, इतना लंबा सफर है, मैं कैसे जा सकती हूँ? औरतों ने जिद किया, तमाम औरतों ने जिद किया। हलीमा चलना शुरू करती है। हलीमा अपनी सवारी पे सवार हो जाती है। सब औरतों की सवारियां तेज चल रही थी, हलीमा की सवारी चंद कदम चलती बैठ जाती, चंद कदम चलती बैठ जाती। हलीमा सादिया सब तमाम औरतें, जब हलीमा मक्का में जा रही है, तमाम औरतें बच्चों को लेके वापस आ रही है। हलीमा सादिया ने उन औरतों से कहा, बताओ किसी के घर में कोई बच्चा बचा है? तो औरतों ने कहा, नहीं नहीं, तमाम बच्चों को हमने ले लिया, कोई बच्चा नहीं है। एक औरत कहती है, ए हलीमा, वो जो सामने हवेली है ना, उस हवेली में एक बच्चा है, उनके अब्बा का इंतकाल हो गया है, वो यतीम है। उस औरत ने मेरे नबी को यतीम कहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम यतीमों का सहारा बन के आए हैं। उसे नहीं मालूम था तो यतीम बनकर आए हैं, उसे नहीं मालूम था गरीबों का मसीहा बनकर आए हैं। औरतों में एक जुमला कहा जाता है, अल्लाह जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। हलीमा नहीं जा रही थी, जबरदस्ती किया गया, अब कोई बच्चा नहीं बचा। हलीमा ने कहा, कोई नहीं, कम से कम उसी को लेके जाए, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। गई, दरवाजे पे दस्तक दी। जब दरवाजा खुला, नबी के दादा सामने से मौजूद है। कौन हो? हलीमा ने कहा, मैं बनी साद की हलीमा सादिया हूँ, मैं आपके बच्चे की परवरिश करूंगी। सरकार के दादा हाथ थामे लेकर के अंदर गए, नबी की माँ से मुलाकात करा दिए। नबी की माँ बैठी है, हलीमा बैठी है। नबी की माँ ने कहा, ए हलीमा बैठ जाए, आप बैठ जाए, अभी मेरा लगते जिगर मोहम्मद आराम कर रहा है, अभी मेरा बेटा आराम कर रहा है। हलीमा बैठ गई। नबी की माँ आमिना खातून कहती है, ए हलीमा सुनो, तू मेरे बच्चे की परवरिश करेगी। मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। जब मेरा बच्चा पेट में आया, पहला महीना था, मेरा बच्चा मेरे शिकम में आया, पहला महीना था, मैं सोई थी, अचानक मेरे घर की छत फट जाती है, एक औरत नाज़िल होती है, एक औरत उतर गई, मैं घबरा गई। उस औरत ने कहा, हे आमिना खातून घबराए नहीं, मैं कौन हूँ जानती हो? मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। हे आमिना खातून आप घबराए नहीं, आपके शिकम में जो बच्चा आया है वो आम बच्चा नहीं, नबियों का सरदार आया है, खुदा का महबूब पैगंबर आया है। अभी आमिना खातून कहती है, ए हलीमा मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। हर महीना किसी महीना हलीमा हजरत हव्वा आई, दूसरे महीना हजरत मरियम आई, तीसरे महीना हजरत हाजरा आई। हर महीना कोई न कोई औरत आती और जाफजा मुस्ता सुनाती, हे हलीमा मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। जब मेरा बच्चा मेरी गोद में था, आसमान के तमाम सितारे मेरे आंगन में जमा हो गए। जिस रात मेरा बच्चा पैदा हुआ, आसमान के तमाम सितारे आ गए। मैं डर गई कहीं कोई सितारा गिर न जाए। अचानक
से मेरा बच्चा आसमान में चला गया। मैं डर गई, मैं खौफ खा गई, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। तो आसमान से आवाज आई, ये नबी आखिर समा है, इन्हें 18,000 मखलूकात में ज़ियारत कराई जाए। थोड़ी देर के बाद मेरा बच्चा मेरी गोद में आ गया। आसमान से आवाज आई, ए नबी की माँ आमिना खातून, आप घबराएं नहीं, जो गोद में आपका बच्चा है इनका नाम जमीन पे या आसमान पे अहमद होगा, जमीन पे मोहम्मद का क्या पुकारा। नबी आए, मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई है, सरकार आए हैं, सुनते चले जाए। हलीमा सादिया से नबी की माँ आमिना खातून कहती है, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। जब इनके दादा ले गए काबा मेरे बच्चे को सजदा किया था, हलीमा सादिया ने कहा, ऐ आमिना खातून अब रहने दीजिए, अब उस बच्चे की ज़ियारत करा दे। ए आमिना अब रहने दे, उस शहजादे की ज़ियारत करा दे। हजरत हलीमा सादिया को लेकर के नबी की माँ जा रही है। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और मचल जाए अपने नबी की विलादत की तारीफ पर। हलीमा सादिया को लेकर घर के अंदर गई। आज मेरे नबी की विलादत के चंद दिन हुए हैं, नबी हरे चादर में लिपटे हुए थे, सिर्फ चेहरा खुला हुआ था। हलीमा ने देखा, ऐसा लगा चारों तरफ बादल है, बीच में चौधरी का चांद मुस्कुरा रहा है, चारों तरफ तारीकी है, बीच में रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। हलीमा ने जब देखा करके नबी की पेशानी को चूम लेती है। मेरे आका आंख खोल देते हैं, मुस्कुराते हुए आंख खोलते हैं, नबी मुस्कुरा रहे हैं। हमारा बच्चा और आपका बच्चा अगर नींद से बेदार हो, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बेदार हो, कितना अच्छा लगता है। ये तो नबियों का आका मुस्कुरा रहा है, ये तो खुदा का पैगंबर मुस्कुरा रहा है, ये तो नबियों का सैयद मुस्कुरा रहा है, ये तो नबी आखिर ज़मां मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा सादिया को गोद में ली, इजाजत मांगी। नबी की माँ आमिना खातून आंखों में आंसू लेके इजाजत देती है। नबी की माँ आमिना खातून इजाजत दी, हलीमा लेकर आई। गौर से सुनिएगा, हलीमा की उठनी जहाँ बैठ जाती